ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, as promised to each and every one of you, I have with me the legend, the voice of, I would say, Muhammad Rafi, should I say, and the person who has brought you amazing songs. In the music industry, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਆ, but we don't know the face behind the name. So as I promised you, I have with me a great legend. ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਤੀ। ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਅੱਜ, so thank you so much. I'm so honored honestly. मैं बहुत खुश हाँ। मेरी इच्छा सी कि मैं तुसी जदों टीवी खोलिया सी, मैं चाहता सी कि मैं तुसी मेरे नाल गलबात करो। अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਸੂਸ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰਸ, ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। So ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ as soon as they found out ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, we have had so many people get in touch with us saying, RTG, please ask this, please ask this, please ask this. Even other hosts have been fighting, मैं इंटरव्यू लूंगा, मैं लूंगी। मैं क्या नहीं सारे पीछे हट जाओ, मैं लूंगी। नहीं, I think as far as जसूसी दी गल ते मैं बिल्कुल सहमत हाँ। there have been time के जदों कुछ लोग जदों मेरे नाल टच हुए, they literally told me where I was, what time, what I sang. I never knew. No, and I said, look, I remember going there. I said, no, तुसी आ गल कही, तुसी इत्थे खड़े हुए, तुसी इत्थे बैठे। It's amazing how people observe you. आपका पीछा कैसे करते हैं और कैसे follow, because I'm lucky enough to have fans all over India as well as abroad. क्योंकि मैं जब इंडिया भी सी, मेरे लेटर जो आने सी राइट डाउन टू मद्रास, उड़ीसा, यूपी, क्योंकि कुछ गाने हिंदी मेरे प्रचलित काफी हुए सन। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी के गाने भी आपके बहुत फेमस रहे हैं, जो आपके पंजाबी गाने वो भी बहुत फेमस रहे हैं और बहुत फेमस रहे हैं, और बहुत कम लोग इस बारे में भी जानते हैं, क्योंकि सब जो मेन आपकी फेमस, मैं कह सकती हूँ नेशनल, हमारे म्यूजिकल एंथम्स जो बन गए हैं, जैसे कि काली तेरी चोटी, परांदा तेरा लालनी, एंड यू नो they are रेल गड्डी, they are the anthems of music. So बहुत लोग कह रहे थे कि आरती जी, is it really the person who sang this song? It's hard to believe, you know? And I said, नहीं, he is the one. क्योंकि साडी फोटो से लाइव पोस्टर पाए थे, नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। So people are in disbelief. How ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ
थोड़ा जिहा परमात्मा ने मेहर कीती कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ I'll add to that, मैं सलमान खान के साथ अमेरिका टूर पर गया सी जी, तो उत्थे पहली बार वैनकूवर मैनू टोटल पंजाबी कम्युनिटी देखने आई क्योंकि उदों मेरे 2-3 गीत बहुत हिट सी कोई जिस तरह की काली तेरी, फिर पंजाबी गीत बहुत हिट है, उच्चे कच मंगने, डेढ़ गड्डी तो साई। तो जदों प्रोग्राम खत्म हो गया तो बड़े बड़े लंबे उच्चे सरदार मैनू मिलण आए और कहने लगे मंगल भाजी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਲਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਨੀ ਆ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਫੁੱਟ 3-4 ਸਨ। नहीं बिल्कुल, दिल बड़ा होना चाहिए, जिगरा बड़ा होना चाहिए गाने वाला। बिल्कुल जी, आवाज जो रहमत मालिक दिंदा वो फिर कद खास नहीं, शक्ल नहीं देगा। जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ते तुसीं सानू ये दसो कि पहचान नू चिराग मिलिया या चिराग नू पहचान हुई सब तो पहला? सानू किस्सा थोड़ा जिहा दसो। मैनू पता असीं काफी ज्यादा व्यूअर्स सुन चुके हैं, पर असीं ये पुछना चाहते कि एक्चुअली सब तो पहला कनैक्ट किहदे नाल कौन होया सीगा? क्योंकि चिराग पहचान ओबवियसली इज अमेजिंग। यू नो थोड़ा जिहड़ा मैं कह सकदी हैगी आ मेजर स्टैप म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच, पर सब तो पहला चिराग नू पहचान मिली या फिर पहचान नू चिराग ने रस्ता दिखाया? I would say लगता कि चिराग नू पहचान मिली जी। असी थोड़े जे पॉपुलर हो गए सी, फिर एक कंपीटिशन जदों असी ज्वाइन किया रफी साहब दी याद, उत्थे फिर पहचान वंडरफुल म्यूजिशियंस आए हुए सी और उत्थे इन्हां नाल मुलाकात हुई। तो साडे असी 4-5 दोस्तां ने बह के ग्रुप बनाया सी। अमरजीत सिंह, छंदा बोगल सी, एक प्रेमपाल जी हुंदे सी। असी 4 बंदियां ने वो कंपीटिशन जित लिया। हाँ जी, तो टू बी ऑनेस्ट मतलब हंकार गल नहीं, सच्चाई जो है असी आवाज दे सेते वो कंपीटिशन जितया रादर देन म्यूजिक। हाँ जी, तो उन्हां कोल बहुत अच्छा म्यूजिक सी। तो फिर मेरा ख्याल उत्थों फिर अमरजीत ने सोचा कि मंगल if we can get join in, we can have amazing growth. लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो बेचो, आपस में
You speak English so well, and it is so amazing because तू जमी नहीं होनी ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ I know मैं वही कहने वाली थी कि it was definitely मैं 100% मैं उससे जमी क्योंकि ਤੁਸੀਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੇਰਾ 81 ਦਾ ਜਨਮ ਆ so मैं वही तो कह रहा कि actually I used to have very strong black country because I was literally brought up there and then I went to Bombay 10-12 साल फिर उठों दी भाषा मैनू language accent पकड़ लिया मैं हाँ जी so it's kind of became mishmash now I can speak a little bit of Cockney, a little bit of Birmingham, a little bit of Bombay. Wow. Oh my God, no, that's amazing. I mean, ਤੁਸੀਂ obviously ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 뮤직 ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂ 뮤직 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ No. I knew somewhere there was a lot of music in me. I knew I used to sing in school. Yeah. But it never ever occurred and came in my mind tasavvur kade nahi kita si ki main a singer banana. I knew I can sing well, obviously like many people do. तो तुसी believe नहीं करोगे तकरीबन 7-8 साल 10 साल तो मैं नहीं गाया because मैं अपनी कबीलदारी में बिजी हो गया. I had 2 beautiful kids. I got married and all that kind of thing. I was working in a factory. Oh my God! I did some education. I did some education at Wolverhampton Poly and Dudley College. Dudley. Oh my God! and then I got a job in a factory, and it was like a kind of mixture of white collar and on the floor, like kind of foreman type thing. Hanji. Oh my God. And that's when it all started, when I started going to little party. And from little party, I went to do a gig in university. Wow. And that's where my whole life changed. Amarjeet was there. He seen me and he came to me. He said, "You've blown my mind." And I was just singing on baja in tabla. Oh my God, no way. And then how did your journey to Bollywood start? Because खास करके जो UK the artists ने, like normally you would think, if you're in India, you'll have a better chance because you're in the country already. ते तुसी connect हो सकते हैं and you can connect with the right people and then थानू ज़्यादा अच्छा मौका chance मिल सकता to move forward in the music industry. But तुसी थोड़ा जिहा अपना detour लिता. तुसी इंडिया तो इंग्लैंड आए, इंग्लैंड तो वापस बॉलीवुड में गए. तो तुसी बॉलीवुड का कनेक्शन किस तरह बनया? I mean, this is amazing. I mean, you can literally write a book. Yeah. Because it's so much involved. So here we had Chirag Kachan and we started recording. First album we did, let me put the Bhumika bana. Hanji. So pehli album jo Nach pe Suresh Wadekar sahab ne ki thi asi. Oh, that was phenomenal, very big hit. The songs were taken for a Punjabi movie, Bane Banaya. Ji. And to my astonishment, वो Punjabi film भी silver jubilee हो गई. Wow, that's सच्ची परमात्मा की कृपा हाँ. And that's it. Then Mangal Singh की Punjabi industry में demand बढ़ी. Mangal Singh was born in Punjabi industry then. Yeah. And then the producer said, "We're going to do for more in Punjabi film." And I went to sing Jat Su mein. And that's where my life changed again. Because when I was singing Jat Su mein, Rajesh Roshan ji ऊपर सनी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग आया, मैं नीचे कर रहा. अच्छा, ओ माय गॉड. तो मैं जब गा रहा हूँ तो नीचे खड़े होकर सुन रहे हैं बाहर, दरवाजा बंद. अच्छा. हाँ, तो बंद दरवाजे में वो गा रहा था. जट सुर में गाना थी वो, एक उजला के हीर टाइप.
हाँ हाँ, उसी तो गा के सुनाना चूचक बाबुल काज रचाया होनी हीर पराई बेले विच सुनी वे पुबा मार रही शहनाई। वो मैं गा रहा है, वो सुन रहे बात जी। तो वो पूरा गाना सुन के चले गए। और फिर उन्होंने सेक्रेटरी आया मेरे। अच्छा। तो भाई until then I had no idea कि मैं हिंदी फिल्म गाऊं। Oh my God. क्योंकि I thought मैं पंजाबी फिल्म गाऊंगा, back to UK, do my अच्छा। program, do my and he said राजू भाई ने आपको बुलाया है कल सुबह। Oh my gosh. तो फिर आपकी हाजिरी आपको लगानी पड़ी। ये भी एक हिस्ट्री है। लोग वहां 10-10 साल घूमते हैं, इंटरव्यू नहीं मिलती म्यूजिक डायरेक्टर, नहीं और यहाँ खुद बुला रहे। ये भी देखो कुदरती रहमत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी किस्मत में था, आपकी किस्मत में था, आपकी किस्मत में था, तो वो आपको मिला। ये चीज है। और जिसकी आवाज में कशिश हो, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर वो खुद वो वहां पर खड़ा होकर उसने पूरा सुना, उसको याद रहा, और उसने अपने सेक्रेटरी से बोला कि आप इनसे जाके मिलो। तो इसका जब आपके पास टैलेंट अच्छा हो, आपकी आवाज में वो कशिश हो, और आप गाने को सिर्फ कमर्शियल गाना समझ के नहीं, मगर इबादत समझकर आप उसको गाते हैं, पूजा समझकर उसको गाते हैं, तो उसमें वो शक्ति आ जाती है जो किसी और चीज में नहीं होती। और आपके जितने भी हमने गाने सुने हैं, चाहे कोई फिल्म के हों, या कोई भजन हो, या कोई अपने कोई बानी का पाठ किया हो, या फिर अपने कोई भी, जैसे हम न्यू एज सॉन्ग कह दें, या पार्टी सॉन्ग कह दें, या सैड सॉन्ग कह दें, मगर सब में वो एक मैजिक है। वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो मैजिक का सीक्रेट क्या है? I believe that when I sing, रूबरू मैं उसके लिए गाता हूँ ऑलमाइटी की। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने अकाल पुरख के लिए, जिसने ये पूरा जग सजाया है, उसको याद करके फिर एक चीज मैं और बहुत अपने आप में समझू, मैं कहता हूँ शायद मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव थिंग है, मैं पूरा गाना पढ़ता हूँ, उसका एक एक लफ्ज पढ़ता हूँ, फिर उसका मतलब समझता हूँ कि ये क्या कहना चाहता हूँ, फिर वो मतलब उसी एक्सप्रेशन से मैं कोशिश करता हूँ। जी जी, नहीं बिल्कुल। और एक लफ्ज, और मैं समझता हूँ कि ये भी जो मेरी शिक्षा है, ये मैं दुनिया के सबसे बड़े महान कलाकार रफी साहब से पाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं 6 साल का था आती, जब मैं सड़क पर जा रहा था तो रफी साहब की आवाज सुनी। अभी ये सुनने वाली मैं किसी को नहीं बताई ये बात जी। मैं जा रहा हूँ, रफी साहब की आवाज सुनी, मेरी उंगली पकड़ी हुई, मैं ऐसे उसको कहा रुको रुको, मुझे सुनने दो। वो ऐसी आवाज उस दिन मेरे कान में पड़ी कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। उस दिन से मैं सुर के पीछे पड़ा हूँ, सुर ढूंढ रहा हूँ, और आज भी ढूंढ रहा हूँ। ओह माय गॉश। कभी वापस
समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। वो क्या बात है कि दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। हाय हाय प्यार की नगरी
चुप है दीवार, मन का उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मिलता दिल बन जाता, दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, Oh my gosh. नहीं, आपको आपकी गाने का स्टाइल, उसमें रफी साहब का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। तो डेफिनेटली हम तो ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई रूहानी शक्ति जो उनके पास है वो ही आपके पास भी आई है, क्योंकि डेफिनेटली उनका इन्फ्लुएंस आपके गानों में हमें सुनाई देता है। कई बार तो मैं जानबूझकर आपकी फेसबुक पे चेक करती हूँ कि आज इन्होंने क्या अपलोड किया। आज हाँ जी। इन्होंने मैं क्या जब पहली बार आशा जी के साथ गया तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दिया। हम्म। उन्होंने कहा कि रफी साहब चले गए मगर आपके पास है। हाँ, आपकी आपके आपके अंदर है, वो आपके पास है। हाँ 100% उन्होंने मैं उनसे 100% सहमत हूँ इस बात के हाँ। लिए ना, और 100% दूसरी सहमत बात हूँ। उन्होंने बोला संभाल के रखना। ये भी चीज है। तो आप इनको संभाल के कैसे रखते हैं? संभाल के देखो, जो चीज आपको नहीं सूट करती, जो गला खराब करती, हम्म। वो पता चल जाता है आप, हाँ हाँ तो वो अवॉइड करना। और उससे ज्यादा संभालना मेरा शायद मानना है कि thinking about it all the time, that yeah, and doing things with your throat, exercising, definitely नहीं definitely namely रियाज। जी। फिर रियाज के अलावा भी कुछ मेरे जैसा बंदा कुछ आवाजें निकालता रहता घर में बैठ के, हाँ सो गले की वो हाँ, नहीं वो होना चाहिए, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, हाँ, रियाज होना तो चाहिए। वो गले का बिल्कुल एक्सरसाइज होता है। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो सॉन्ग्स है, जैसे रफी साहब का आप कोई भी सॉन्ग ले लो, कोई भी उनका गीत ले लो, वो आज भी सुपर हिट है, आज भी लोग जी झूमने लगे, और वो किसी भी जनरेशन के कोई पर्सन हो, उसमें जी एज का हम नहीं डाल सकते, क्योंकि न- म्यूजिक हैज नो लिमिट्स। मगर जो आजकल के जो गाने आते हैं यूट्यूब पर, देखो 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, पता नहीं कितने कितने व्यूज आ जाते नहीं हैं। नहीं वो एक हफ्ता वो गाना चलता है, बाद में गायब, हाँ और किसी को हाँ याद भी नहीं होता कि इसकी दूसरी लाइन क्या है। जी तो जी जी। इसका आप हमें अपने क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस कितना रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप खुद आपका म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत पंजाब बॉलीवुड सब साइड्स में आपने किया है, लाइव परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि ऐसा क्यों है, आजकल के गाने चलते क्यों नहीं? देखो, मैं समझता हूँ कि जब पहले गाने बनते थे तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अल्फाली हम्म। जब मैं सुकून चाहता हूँ तो मुकेश जी को सुनता हूँ, अच्छा। क्योंकि उनकी आवाज में इतना सुकून है हम्म। और दर्द है। जी बिल्कुल। जी, तो इसी तरह जब मेरे को थोड़ा वो मूड थोड़ा ये फिर मैं कुछ और जाके सुनता हूँ, ओह गुड। नहीं, ये भी है, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग हमारे पॉइंट है। 3 जो सिंगर थे हिंदुस्तान में, जी मतलब ये कभी हिस्ट्री में ना आएंगे, ना आए हैं तो ना आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये हमें गिफ्ट थी हिंदुस्तानियों को, जी, आपने 100% आपने तीनों की। सही कहा। जी हाँ जी, जी जो मुकेश जी गा सकते थे वो रफी साहब
जो हाँ रफी हाँ साहब गाते थे वो किशोरदा, जो किशोरदा गाते थे मन्ना डे। जी जी, नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़े सिंगर थे, यू वॉन्ट बिलीव। रफी साहब, राजू भाई बताते थे कि आज सिंगर स्टूडियो में आते हैं, जो आपका जवाब अभी मैं दे रहा हूँ जो पहले आपने हाँ बोला। हाँ राजू भाई कहते हैं आज सिंगर आते हैं, सीधा आके स्टूडियो में जाके बोलते हैं बताओ कौन सा गाना, हम्म एक एक दो दो लाइनें करके डबिंग कर देते हैं, हाँ हाँ एंड देन विल पुट इट टुगेदर। हम्म एंड इसी, यहां तक भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, इसे आज के कुछ फेमस सिंगर हैं, वो खुद ही ओके कर देते हैं, हाँ राजू भाई ये ठीक है। ओ माय गॉड। तो ये आलम है म्यूजिक। हम्म तो उस वक्त वो बता रहा है कि रफी साहब, लता जी, मुकेश, कभी कभी दो दो हफ्ते प्रैक्टिस करनी आती ओ माय गॉड। तभी थी। राजू की मदर से मेरी बात हुई, उनके फादर की, रोशन साहब की। अच्छा जी तो ये सुनने वाली बात बिटवीन आप शेयर शेयर। जी। वो कहते हैं कि रोशन जी साल का एक ही फिल्म लेते थे। ओ जिसे अक्सर मैं उनको कहती थी कि ज्यादा लो क्योंकि पैसे आते हैं, तो वो कहते नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। हम्म और वो बता रहे थे जब कवाली बनाई गई, ये इश्क इश्क है, हाँ जी। 6 महीने रिहर्सल हुई, ओ माय गॉड। आर्टिस्टों की 6 महीने। हम्म तो आप तो देखो कि इसलिए काइंड आज ऑफ ये वो, है। इसलिए सदा के लिए गाने हैं ना वो आज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी रूह डाल देते थे ना उसमें। हाँ हाँ। तो अभी तो थोड़ी सी जैसे पता नहीं समय कम है लोगों के पास, या फिर वो गाने की वो कदर शायद नहीं करते हैं नहीं नहीं, क्योंकि समय नहीं, आई थिंक इस ये एक अजीब सा ट्रेंड आ गया टेक्नोलॉजी का, कि हम्म आप एक एक दो दो लाइनें, लता जी ने बताया था एक इंटरव्यू के, पहली बार मैं रहमान साहब के गाने गई तो उन्होंने माइक के आगे खड़े कर दिया, बोलते गाते जाओ मैं आता हूँ बाद में, मैं काम जा रहा हाँ हूँ कहीं। हाँ। ये बार बार ओ गाते माय जाओ। गॉड। हाँ बस यही माय दिया गॉड। जले, ये था कहना। नहीं तो नहीं कहते मैं आप। गा 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 के थक गई, तो उन्होंने बेस्ट निकाल लिया उसमें। ओ ये माय गॉड। ये हाँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं, हम लोगों ने लाइव गाया है। हम्म आई हैव sang with literally 100 piece orchestra live, वाओ। ओ माय गॉड। रिकॉर्डिंग फिल्म। हाँ तो आप इमेजिन करें अगर एक भी आर्टिस्ट की इतनी भी सी गलती कर दे, then you start. एग्जैक्टली, यू हैव टू स्टार्ट all from So scratch। you have to, जैसे सुई के नक्की से धागा नहीं डाल, हाँ हाँ। इतना बारीक आपकी फाइन टचिंग होनी चाहिए आपकी, ओ माय इतने गॉड। टैलेंटेड आप होना। जी। तो उसमें सबकी तालमेल भी जरूरी है, सबकी बहुत सेटिंग ज्यादा। सही होने की, क्योंकि जैसे कि आपने अभी भी कहा कि एक जन से गलती हो जाए तो सबको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसमें आप क्या इसके पीछे रहस्य क्या है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, या फिर आप पहले मिलते हैं, या सबको म्यूजिक की कुछ ना कुछ समझ है? नहीं, हम लोग बहुत डिटेल में आती, पहले हम्म जो सिंगर थे बहुत डिटेल में जाते थे। जी जी जी। यही जैसे तो बातें हम सुनना चाहते हैं सर, क्योंकि ये बातें आजकल के आर्टिस्ट से इंटरव्यू करो वो सुनने को नहीं मिलती। तो आपसे यही सच हम सुनना चाहते हैं। यही तो हमारा गोल्ड है जो आप हमें आज हीरे हीरे बांट रहे हैं आज के शो में। नहीं क्योंकि जो लिरिक्स होते थे, जब म्यूजिक डायरेक्टर समझाते थे कि ये कंपोजिशन है, जी। उसमें भी हम एक ही लाइन को बोलते कौन से लफ्ज पर हम्म कहाँ से इसको ज्यादा फोर्स करना है, और लफ्ज को कहाँ से कम करना है, जी जी। वो इतनी डिटेल में जाते हैं हाँ हाँ न? तो कोई भी गाना, जैसे वो कल्याण जी भाई बता रहे थे, क्योंकि जब रफी साहब रेसल करते थे, हाँ वो हाँ। वही हमारा सबका स्टाइल था। तो ओ वो फॉर एग्जांपल परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, हाँ जी। तो पूछते परदेसियों पर कितना, परदेसियों कितना, उस पर वजन है, ओम पर, हाँ मिलाना पर मिलाना। हाँ जी।
तो ये कितना सॉफ्ट है, वो कितना उस पर वजन है, जी। ये वो बहुत बारीक काम होता है। तो अभी आपने ये गाना छेड़ ही दिया है, तो इसकी 4 लाइन तो सुनानी ही पड़ेगी आपको। ये तो रफी साहब का बड़ा पॉपुलर गाना है, जी तो उनके लिए भी मैंने पिक्चरें गाई थी कल्याण जी भाई के लिए। जी। हाँ जी, तो उन वो मेरे मेरे पर ब्लेसिंग है उनकी बहुत, बिकॉज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं फ्री होता था तो मुझे बुला लेते थे, तो मुझे ट्रेनिंग भी देते ओह वेरी गुड, थे। वेरी गुड, दैट इज सो अमेजिंग। तो ये जब हम ऐसे हस्तियों के साथ हम बैठते हैं, उनसे ट्रेनिंग मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की हमारे ऊपर एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है, उनका एक्स्ट्रा हमारे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि ये भी नसीब से ही होता है कि अच्छे लोगों का संग मिले और वो भी वक्त निकाले, हम भी वक्त निकाल पाए और उनके साथ हाँ। बैठ सके, उनसे कुछ सीख सके। तो आपका, आपकी लाइफ जर्नी में अब तक का आपका सबसे बड़ा गुरु, आपका टीचर कौन रहा है? मुझे लगता है जैसे मैं पहले अर्लियर मैंने आपको जिक्र किया, जाहिर है कि मेरी ट्रेनिंग बचपन में शुरू हुई रफी साहब को सुन के। जी जी जी। तो तो मैं उनको बहुत गाया, बचपन में बहुत गाया, जी। और आई थिंक दैट इज ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग इटसेल्फ। या नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी, मेरा हाँ जी। मानना है कि आज किसी ने अच्छा सिंगर बनना है तो गुरु गुरु तो गुरु के पास तो जाना पड़ता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अगर रफी साहब, लता जी, आशा जी के, अगर आप इनके गाने गा लो तो आपको खुद को ट्रेनिंग मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके गुरु तो आपके पास आए, उनकी आवाज आपके कानों में सबसे पहले पड़ी, तो जी आपके गुरु तो आपके पास आए। हाँ, आई वाज स्टन्ड व्हेन आई हर्ड दैट वॉइस। मैंने सोचा ये आवाज कहाँ से आई, हाँ, मुझे लगा कोई ऊपर से, पता नहीं कहाँ से ये कोई आवाज ब्लेसिंग है। जब मेरे जी। कानों में पड़ी। उस दिन मेरे अंदर सुर इधर गई और आज तक ढूंढ ओह माय गॉड, नहीं रहा। दैट्स अमेजिंग। तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो सबसे मनपसंद रफी साहब का कोई गीत है जो आपके दिल को एकदम से छू जाता है, दिल को नहीं रूह को छू जाता है, वो उसकी 4 लाइंस हमें जरूर सुनाइए आप। रफी साहब का कोई भी गाना, मैं मेरे ख्याल रफी साहब एक आवासी भी ले लें वो भी सुर में होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। क्योंकि आज, हाँ, आज तो तो ये हमारे इसलिए सामने जो अगर उन्होंने जी। एक लाइन भी बोली है कहीं हम्म। तो मेरे लिए इबादत है वो। बिल्कुल, आप हमें एक लाइन ही सुना दें। क्योंकि एक्सप्रेशन के बादशाह थे वो। जी। दो, एक लाइन पंजाबी में सुनाऊंगा, एक हिंदी में सुनाऊंगा, थैंक यू। ठीक है जी। और दोनों इसलिए सुना रहा हूँ ये बिकॉज इसमें रिदम नहीं है। हाँ जी। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहरा जाता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। आवाज में मैं बता नहीं सकती, डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ मैजिक है, पावर है, आप इसको कुछ भी बोल लो, मगर है, वो पावर है आपकी आवाज में। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि हमारी बात कंटिन्यूअस रहे, कि जैसे कोई हाँ टाइम लिमिट ना होती,
क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैं साक्षात रफी जी का इंटरव्यू ले रही हूँ। शायद कुछ नहीं लोगों को नहीं बुरा नहीं, लगे, इतना बड़ा मगर नहीं, इतना नहीं। मुझे मुझे ऐसा मैं फील उनके हो रहा है। पाँव की धूल हूँ, पैरों की हम्म, धूल आ जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ नहीं ਦੀ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 5% की ਵੀ ਗਾ ਲਈਏ बहुत ਤੇ ਅਸੀਂ। कशिश, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। हाँ, एक छोटा सा पंजाबी। ਹਾਂਜੀ। मैं जिससे तू ना, जिससे तू ना, जिससे तेरा परछावा है, किथे चला जावां मैं, किथे टुर जा ना, ना, जिससे तू आस न कोई, प्यास न कोई, डूब गए ने वेड़े हाय, जिथे साडा मेल होवे ओरा केड़े, जिथे साडा मेल होवे ओरा केड़े, ओरा केड़े, आए दस रब्बा हुण किवें दिल पर जावा, किथे चला जावां मैं, किथे टुर जावां ना, जिससे तू। That's so amazing. I mean, all our viewers that are sitting at home at the moment who are watching, listening, you've touched their souls. You've definitely, pulled my heartstrings. I had to hold my tears back because it's very emotional. It really, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ it's absolutely amazing. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ। I think जिसका काम उसी को साजे, that's what I really believe. क्योंकि composers are God gift, same as singing. ब्रीड होता जी, उनका काम कंपोजिंग होता है। मैंने ऐसे कंपोजरों के साथ काम किया कि वो जब ट्यून समझाते आवाज ही नहीं सुनती, मगर जब गाना आप गाता है सिंगर तो फिर सुनो क्या उन्होंने बनाया। फिर पता चलता। सो कंपोजर लिटरली, इवन राजू भाई बहुत सॉफ्ट बताते थे मुझे गाने में। उनके लिए रोमांटिक गाने भी है, काली तेरी शायद, तो शायद उनका बिगेस्ट हिट था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर और भी उन्होंने गाने मेरे से गवाए, मैं 5-6 पिक्चरें उनके लिए गाई थी। बल्कि पहली फिल्म मेरी विष्णु देवा, जब मेरे को उन्होंने टेस्ट किया, हाँ जी, वो बात वहीं आ गई कि मैं दूसरे दिन मुलाकात करने गया, तो मेरे को बोलो यू आर नंबर 1 आप पंजाबी हैं और नंबर 2 आप इंग्लैंड से हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हाउ कैन यू डिलीवर हिंदी सॉन्ग, वो भी बॉलीवुड। तो ये तो बहुत स्पेशल जॉब है।
आई आई अंडरस्टैंड, पंजाबी में तो मैं मान गया। हाँ हाँ तो मेरा तो फिर एक ही उनको कहना था कि राजू भाई, हाथ पर परख के देखो, वैसे तो जो मर्जी बातें करें। हाँ जी, ये सही बात की आपने। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। बातों करने में क्या है, तो आप भी करी जा रहे हैं, मैं भी करी जाऊँ, हाँ मैं भी कही जाऊँ जी, मैं पता नहीं कौन सा अपना हाँ हूँ, हाँ आप भी। ऐसा बिल्कुल। नहीं, आप काम देख लीजिए, करवा के देख लीजिए। हाँ हाँ। तो फिर पहला गाना उन्होंने इस हिसाब से मेरे को दिया कि टेस्ट करने को, अच्छा विष्णु देवा फिल्म थी, सनी देओल पर गाया था मैं। अच्छा जी। तो साथ में थे कृष्णा मूर्ति जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो कृष्णा मूर्ति जी फिल्म गाना शुरू करती है, और एंड में मैं एक अंतरा गाता हूँ। उन्होंने अच्छा। ऐसे टेस्ट किया मुझे। हाँ हाँ। हाँ माय जी। गॉड। तो मैंने जब वो अंतरा गाया, टच वुड, वो इतना फेमस, वो एक अंतरा इतना फेमस हो गया। हाँ जी। माय गॉड। तो वो अंतरा हमें सुना दें हमारे व्यूअर्स को, कि वो क्योंकि हाँ आपकी लाइफ में एक पिवटल पॉइंट था, हाँ है ना। तो वो आपकी लाइफ में मैं कहूंगी एक मेजर पॉइंट था। अगर मैं कह सकते हो, अगर मैं आपकी करियर के बारे में मैं एक किताब लिखती तो मैं उसको भी कहती एक नया चैप्टर था वो आपकी लाइफ में। तो वो अंतरा वो आप हमें सुना दें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि ये लाइफ चेंजिंग। I'll have to see मेरे को कितना याद है, पर यू विल नो द ट्यून एटलीस्ट, जी अगर मैं अपनी कुछ बात उसमें रख दूं जी। फिल अप जरूर करने के जरूर। लिए पर यू नो, उनका गाना था, आगी 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 उपड़ी आगी हाँ यारो। जी। हाँ जी। हाँ। तो वो तो उसमें मेरा अंदर आते जाते रह जाती हो, आंख से आंख लड़ाती हो, हम्म। गले मेरे लग जाती हो, और कुड़ी तू बड़ी सियानी, तू ना करे नादानी, तो करने ले जवानी, ये तेरी जे जवानी, दिल तो ले गई, दिल तो ले गई हो, दिल तो देगी, दिल को लेगी, आ गई आ गई आ गई हो, कुड़ी आ गई यारो। ऐसा था कुछ। अब स्टिल डोंट हाँ। रिमेम्बर No, प्रिसाइसली but it's amazing. This is the a life-changing event. you know हमारी लाइफ में, जिंदगी में ऐसे कुछ ऐसे पल होते हैं कि जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और मैं कहूंगी कि ये अंतरा भी एक ऐसा, एक आपकी लाइफ में एक ऐसा पिवटल पॉइंट था कि जहां पर आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होगी, बदलेगी। दूसरे, बस तीसरे चौथे दिन फिर बुलावा आया हाँ हाँ। कि एक सोलो गाना, बड़ा गाना है आपके लिए, अच्छा। और आपके स्टाइल का है। हम्म। तो हमने फिर इसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन थी मेरी जी। कंपोजिशन की। आपने ओके। बोला हाँ हाँ। काली तेरी चौकी। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आपकी कहानी आपकी जुबानी हो। अगर मैं ही सबको बताना शुरू कर दी तो लोग कहेंगे यार तो ये तो बोरिंग हो गया, कि ये तो आप पढ़ कर हमें बता देते हो। नहीं, ये तो मैं चाहती राजू हूँ ये भाई का, आपकी जुबानी सुने सब। राजू भाई को थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, पर ये हम्म। उनका कमाल था कि उन्होंने हाउ ही पुट इट टुगेदर वाज हाँ। अमेजिंग। ऑब्वियसली आई गेव हिम लिटिल आइडिया पंजाबी ट्यून। ये नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। और सिर्फ इट वाज ओनली दैट सॉन्ग बट आल्सो रेल गड्डी सॉन्ग, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿक्स ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਮੈਂ नहीं ਰਿਜੈक्ਟ मैं ਕਰ आई दूं। रिफ्यूज टू सिंग। या मैंने यू थिंक। मैंने बोला सिद्धू साहब ने, मैं क्या तुसी मेरे नाल मजाक कर रहे हैं, मैं ये गाना गाऊंगा? हाँ, रिजेक्ट रिजेक्ट। मैं क्या व्हाट नॉनसेंस, मेरी रेल गड्डी आई, व्हाट आर यू टॉकिंग हाँ। अबाउट? एंड दैट्स मैं द क्या मेरी मोस्ट शक्ल से, फेमस मैं सॉन्ग। मेरी शक्ल से बेवकूफ लिखा हाँ। कि मैं तो ओह गाना गाऊं? हाँ। मगर माय गॉड। उन्होंने फिर जब एक्सप्लेन किया हम्म। कि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, हाँ। कि जब वेस्टर्न पीपल, अंग्रेज जो
वो कोंगा डांस बनाते हैं ना, Yeah. ये वो कंसेप्ट है हाँ, and it's कि मैं चाहता amazing. कि साडे साडे लोकां वास्ते भी कोंगा डांस होवे, व्हाई नॉट? बिल्कुल, yeah, we need it, and this is our anthem now. I mean, सिर्फ गाना नहीं, पर जे गाना शुरू होने तो पहला थानू पता लग जांदा रेल गड्डी आ रही है, that tune is नहीं वो पता भी लग जांदा, ये भी पता लग जांदा कि हुण अपने भांडे टिंडे चक लो, चलना हुण। That's it. वो लास्ट I गाना think, होंदा। yeah, I think ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ this is ਇਹਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ entrance ਤੇ exit ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। होल खाली करने का चंगा तरीका। आई थिंक रेल गड्डी, मैं इसलिए नहीं मैं कह रहा महंगा, पर रेल गड्डी एक ऐसा पंजाबी गाना बनया हिस्ट्री जो मतलब जिसकी अजीबोगरीब कहानियां। So amazing. I mean, all our viewers that are sitting at home at the moment who are watching, listening, you've touched their souls. You've definitely, pulled my heartstrings. I had to hold my tears back because it's very emotional. It really, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ concept ਤੇ it's absolutely amazing. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ। आई थिंक जिसका काम उसी को साजे, दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव, क्योंकि कंपोजर्स आर गॉड गिफ्ट सेम एज सिंगर। ब्रीड होता जी, उनका काम कंपोजिंग होता है। मैंने ऐसे कंपोजरों के साथ काम किया कि वो जब ट्यून समझाते आवाज ही नहीं सुनती, मगर जब गाना आप गाता है सिंगर तो फिर सुनो क्या उन्होंने बनाया। फिर पता चलता। सो कंपोजर लिटरली, इवन राजू भाई बहुत सॉफ्ट बताते थे मुझे गाने में। उनके लिए रोमांटिक गाने भी है, काली तेरी शहर, तो शायद उनका बिगेस्ट हिट था मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर और भी उन्होंने गाने मेरे से गवाए, मैं 5-6 पिक्चरें उनके लिए गाई थी। बल्कि पहली फिल्म मेरी विष्णु देवा, जब मेरे को उन्होंने टेस्ट किया, हाँ जी, वो बात वहीं आ गई कि मैं दूसरे दिन मुलाकात करने गया, तो मेरे को बोलो यू आर नंबर 1 आप पंजाबी हैं और नंबर 2 आप इंग्लैंड से हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हाउ कैन यू डिलीवर हिंदी सॉन्ग, वो भी बॉलीवुड। तो ये तो बहुत स्पेशल जॉब है। आई अंडरस्टैंड पंजाबी में, तो मैं मान गया। तो मेरा तो फिर एक ही उनको कहना था कि राजू भाई हाथ पर परख के देखो, वैसे तो जो मर्जी बातें करें। हाँ जी, ये सही बात की आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बातों करने में क्या, आप भी करी जा रहे हैं, मैं भी करी जाऊँ, मैं भी कही जाऊँ जी, मैं पता नहीं कौन सा अपना, आप भी ऐसा नहीं, आप काम देख लीजिए, करवा के देख लीजिए। तो फिर पहला गाना उन्होंने इस हिसाब से मेरे को दिया कि टेस्ट करने को। अच्छा। विष्णु देवा फिल्म थी, सनी देओल पर गाया था मैं। अच्छा जी। तो साथ में थे कृष्णा मूर्ति जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो कृष्णा मूर्ति जी फिल्म गाना शुरू करती है और एंड में मैं एक अंतरा गाता हूँ। उन्होंने ऐसे टेस्ट किया मेरे। माय गॉड। तो मैंने जब वो अंतरा गाया टच वुड, वो इतना फेमस, वो एक अंतरा इतना फेमस हो गया। हाँ जी, माय गॉड। तो वो अंतरा हमें सुना दें हमारे व्यूअर्स को कि वो क्योंकि आपकी लाइफ में एक पिवटल पॉइंट था। हाँ,
है ना, तो वो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी एक मेजर पॉइंट था। अगर मैं कह सकते हो, अगर मैं आपकी करियर के बारे में मैं एक किताब लिखती तो मैं उसको भी कहती एक नया चैप्टर था वो आपकी लाइफ में। तो वो अंतरा वो आप हमें सुना दें, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि ये लाइफ चेंजिंग। I'll have to see मेरे को कितना याद है, पर you will know the tune at least, अगर मैं अपनी कुछ बात उसमें रख दूं। जरूर पर you will know, उनका गाना था आगी 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 ऊपरी आगी यारो जी। तो वो तो उसमें मेरा अंतर आते जाते रह जाती हो, आंख से आंख लड़ाती हो, गले मेरे लग जाती हो, और कुड़ी तू बड़ी सियानी, तू ना करिए नादानी, तो करने ले जवानी ये तेरी जे जवानी, दिल तो ले गई हो, दिल तो देगी दिल को लेगी, आ गई हो कुड़ी आ गई यारो, ऐसा था कुछ। I still don't remember precisely. No, but it's amazing. This is the life-changing event. you know, हमारी लाइफ में, जिंदगी में ऐसे कुछ ऐसे पल होते हैं कि जिससे हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। मैं कहूँगी कि ये अंतरा भी एक ऐसा, एक आपकी लाइफ में एक ऐसा पिवटल पॉइंट था कि जहां पर आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होगी। बस तीसरे चौथे दिन फिर बुलावा आया। हाँ कि एक सोलो गाना, बड़ा गाना है आपके लिए। अच्छा। और आपके स्टाइल का है। तो हमने फिर इसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन थी मेरी कंपोजिशन की। आपने बोला हाँ काली तेरी चोटी। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आपकी कहानी आपकी जुबानी हो। अगर मैं ही सबको बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे आरती ये तो बोरिंग हो गया, कि ये तो आप पढ़ कर हमें बता नहीं, ये राजू भाई आपकी जुबानी सुने सर। राजू भाई को थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने, पर ये उनका कमाल था कि उन्होंने how he put it together was amazing. Obviously I gave him little idea of Punjabi tune. Yeah, नहीं, definitely. और सिर्फ it was not only that song but also the रेल गड्डी song, ਜਿਹੜਾ रेल गड्डी ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰ। मैंने बोला सिद्धू साहब ने, मैं क्या तुसी मेरे नाल मजाक कर रहे हैं, मैं ये गाना गाऊंगा? हाँ, रिजेक्ट। मैं क्या व्हाट नॉनसेंस, मेरी रेल गड्डी आई, बड़ी टोकरे बा। एंड दैट्स द मोस्ट फेमस। मैं मेरी शक्ल से बेवकूफ लिखा। हाँ कि मैं तो गाना गाऊं। हाँ, मगर उन्होंने फिर जब एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि जब वेस्टर्न पीपल, अंग्रेज जो वो कोंगा डांस बनाते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि मैं चाहता कि साडे लोकां वास्ते भी कोंगा डांस होए, why not? बिल्कुल, yeah, we need it and this is our anthem now. I mean, सिर्फ गाना नहीं, पर जे गाना शुरू होने तो पहला थानू पता लग जांदा रेल गड्डी आ रही है, that tune is नहीं, वो पता भी लग जांदा, ये भी पता लग जांदा कि हुण अपने भांडे टिंडे चक लो, चलना हुण। That's it. I think उस सारे नु पता लग जाता है कि this is ये रेल गड्डी एंट्रेंस से एग्जिट पे ही जाओगी। होल खाली करने का चंगा तरीका। I think रेल गड्डी, मैं इसलिए नहीं मैं कह रहा महंगा, पर रेल गड्डी एक ऐसा पंजाबी गाना बनया हिस्ट्री जो मतलब जिसकी अजीबोगरीब कहानियां।
say thank you. So as in that case, so I'll take a message from you, but we have to continue this again because 1 hour is not enough. ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ Have ਇਹ we done ਏਦਾਂ 1 ਆ hour? We have done 1 hour. we nearly done 1 hour. ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ No, I'm glad because the thing is you started the kind of conversation which never ends. Yeah, no, I wanted it to be like this. I wanted it to Yeah. be not a boring interview, no? मैं चाहती Yeah, I yeah, want it yeah. to be something कि थोड़ी जुबानी क्योंकि if I say it, Yeah. it's boring. If you say it, it's interesting. Yeah. कि थोड़ी तो आवाज मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करूंगा और सारे सुनने वालों को, आपको चाहने वालों को, आपका चैनल देखने वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि सपोर्ट दिस आवर ब्यूटीफुल चैनल एंड सारे जो साडी इंडस्ट्री है मैं उन्होंने भी बहुत प्यार नाल तकीद करूंगा कि ये साडा अपना चैनल है और बराबर असी सारे साडा फर्ज बनदा असी अपने चैनल ਨੂੰ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच सर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। I think one will do one bit longer. Yeah, definitely. We definitely need to because you know for me because there is a huge amount of information ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ life occurrences ਹੋਈਆਂ there are so many interesting stories as well. No, that's what we want so to we do. will discuss that but for the time being it's a good that we've done that nice short interview just to start with and मैं सारे जो बडिंग कलाकार थे ते मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करूंगा भी तुसी म्यूजिक ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖੋ और सीखो जरूर जरूर थैंक यू सो मच। दूसरा कि एक चीज मैं हमेशा कहना कि अपने माँ बाप बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखो। ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट ਹੁੰਦੀ है कि साडे माँ बाप ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है प्लीज लुक आफ्टर योर एल्डर्स or anybody else who probably living next door to you. नहीं ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and you're very very inspirational. You don't know internationally ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੈਨਸ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ and as promised everybody this is the face behind Kali Teri Choti and he is the face behind the song of the famous Rail Gaddi as well. So thank you so much sir. We'll definitely connect again soon. Thank you. Thank you Aarti. Thank you so much.